A very good afternoon to all of you. Welcome to today's book reading session. I hope you all are enjoying the book reading sessions. So let us start today with a short meditation. Sit back comfortably. Take a deep breath in, deep breath out. Focus between the center of your forehead. Relax your mind. Relax your body. Leave your body absolutely loose. Think about the blessings of today. The blessing today has bring for you. Be thankful for everything you have. Remember, you have everything you need in this present. Appreciate yourself for giving your best every day. And strive to be the best version of yourself. Remember the path you have chosen, the situations that you have, the journey you are moving forward is your own journey. Affirm, I appreciate myself and I never compare my journey with somebody else's. I appreciate myself and fill my soul with strength, blessings, and love. I am God's child. God's powers, love, and blessings are a divine circle of protection around me. I am protected. I am happy. I recognize the omens that God has put forward on my life for me. And I am grateful from the bottom of my heart. All is within my heart. Om Shanti. You may now slowly open your eyes. Share the screen. The screen is visible to all. Sisters, we have already started with chapter 5 yesterday.
mental healing sessions. And Anika's sister has shared a very beautiful quote regarding prayer that we have done in yesterday's session. So we have done the prayer therapy. Today we will start from faith healing, what it means and how blind faith works. What is popularly termed faith healing is not the faith mentioned in the Bible, which means a knowledge of the interaction of the conscious and subconscious minds. A faith healer is one who heals without any real scientific understanding of the powers and forces involved. He may claim that he has a special gift of healing, and the sick person's blind belief in him or his powers may bring results. तो यहाँ पे जो टर्म यूज हो रहा है ना फेथ हीलिंग, इसका मतलब वो नहीं है जो बाइबल में मेंशन है। बाइबल वाले फेथ हीलिंग का मतलब है कि जब हमें नॉलेज होती है अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के इंटरेक्शन की, तो हम लोग उसकी बात करते हैं तो वो फेथ हीलिंग होती है। पर रियल में एक फेथ हीलर कौन होता है? जिसको साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है पावर्स और फोर्सेस की, वो जस्ट ब्लाइंडली फेथ करता है। और जैसे कोई अगर सिक पर्सन है और उससे कहा जाए कि ये फेथ हीलर, ये हीलर है, और जो सिक पर्सन है वो बहुत ब्लाइंडली उस हीलर के ऊपर विश्वास करता है कि हाँ वो मेरी सिकनेस को दूर कर देगा, उसकी पावर्स के ऊपर ब्लाइंडली विश्वास करता है, तो उसे कहते हैं फेथ हीलिंग। अब हम इस वाले रीडिंग में ये सब समझेंगे कि फेथ हीलिंग, ब्लाइंड फेथ कैसे वर्क करता है। The voodoo doctor in South Africa and other parts of the world may heal by incantations, or a person may be healed by touching the so-called bones of saints, or anything else which cause the patients to honestly believe in the method or process. तो यहाँ पे डिफरेंट ट्रेडिशंस के बारे में लिखा गया है कि कोई पर्सन सेंट्स के बोन को छू करके या फिर इनकेंटेशन से हील हो जाता है। पर वो इतना ज्यादा ऑनेस्टली उसमें बिलीव करता है उस मेथड में, उस प्रोसेस में, कि वो हील हो ही जाएगा और वो रियल में हो जाता है। एनी मेथड विच कॉजेस यू टू मूव फ्रॉम फियर एंड वरी टू फेथ एंड एक्सपेक्टेंसी विल हील। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि कोई भी मेथड जो होगा, जो कि हमें, हमारी स्टेट अगर फेयर और वरी की होती, मतलब हमें डर लग रहा है, चिंता हो रही है, उस स्टेट से मूव करके हम फेथ और एक्सपेक्टेंसी में चले जाए, हम विश्वास करने लग जाए और एक्सपेक्ट करें कि हाँ हमारी हीलिंग जरूर होगी, तो इस मेथड से हम हील हो सकते हैं। There are many persons, each of whom claims that because his personal theory produces results, it is therefore the correct one. This has already explained in this chapter cannot be true. तो बहुत सारे लोग हैं जिनको रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो सोचते हैं कि जिस मेथड पे उन्होंने भरोसा किया, जिस थ्योरी पे उन्होंने भरोसा किया और उससे उन्हें रिजल्ट्स मिले, वो करेक्ट। To illustrate how blind faith works, you will recall our discussion of the Swiss physician Franz Axel Mesmer. In 1776, he claimed many cures when he stroked diseased bodies with artificial magnets. Later on, he threw away his magnets and evolved the theory of axonal magnetism. This he held to be a fluid which pervades the universe but is most active in the human organism. He claimed that this magnetic fluid, which was going forth from him to his patients, healed them. People flocked to him, and many wonderful cures were effected. Mesmer moved to Paris, and finally there the government appointed a commission composed of physicians and nurses. Benjamin Franklin was elected to investigate his cures. The report admitted the leading facts claimed by Mesmer, but held that there was no evidence to prove the correctness of his magnetic field theory, and that the effects were due to the imagination of the
patient. Soon after this, Mesmer was driven into exile and died in 1815. Shortly afterwards, Dr. Braid of Manchester undertook to show the magnetic fluid had nothing to do with the production of the events of Dr. Mesmer. Dr. Braid discovered that patients would be thrown into hypnotic sleep by suggestion, during which many of the well-known phenomena ascribed to magnetism by Mesmer could be reduced. यहाँ पे ब्लाइंड फेट थ्योरी में एक मैग्नेटिक फ्लूइड थ्योरी दी गई है एक डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट की, जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मिलता नहीं है कि साइंटिफिकली वो प्रूव कर सके कि उनकी थ्योरी वैलिड थी। उसके बाद में डॉक्टर ब्रेग वो ये प्रूव करते हैं कि जो पेशेंट्स है वो हिप्नोटिक स्लीप में चले जाते हैं बाय सजेशन। बाय सजेशन जैसे आगे भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे ऑटो सजेशन क्या होते हैं, इसमें कुछ एफर्मेशन टाइप के दिए जाते हैं, उन पे हम विश्वास करते हैं, तो उससे वो लोग हिप्नोटिक स्लीप में चले जाते हैं। मतलब उसे एक क्या कह सकते हैं, उसे इमेजिनेशन में वो लोग चले जाते हैं, उस चीज को एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, विश्वास करने लग जाते हैं, और फिर उनकी हीलिंग हो जाती है। You can readily see all these cures were undoubtedly brought about by the active imagination of the patients, together with a powerful suggestion of health to their subconscious minds. तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो क्योर्स थे, ये जो हीलिंग हुई ना, ये अनडाउटेडली कैसे आई, एक्टिव इमेजिनेशन ऑफ पेशेंट से। जो पेशेंट्स थे उन्होंने एक्टिवली उस चीज को इमेजिन किया है, टुगेदर विद अ पावरफुल सजेशन ऑफ हेल्थ, और उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में एक पावरफुल सजेशन गया था ऑफ हेल्थ, तो उसके साथ साथ में उन्होंने इमेजिनेशन किया। तो अभी के लिए हम सब सजेशन को बस ये समझ के जानते हैं कि ये एक थॉट है जिसको हमने बहुत अच्छे से बिलीव किया है। ठीक है, तो ये जो थॉट है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो तभी जाएगा ना कॉन्शियस से, जब हम उस पर पूरी तरह से विश्वास करेंगे। तो हमने पूरी तरह से उस चीज पे, उस थॉट पे बिलीव किया, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए। उसके साथ साथ हम एक्टिवली उस चीज को इमेजिन भी कर रहे हैं। जो हमारा थॉट है, हम जो करना चाहते हैं, हीलिंग अगर करना चाहते हैं, तो उस चीज को इमेजिन भी कर रहे हैं कि हम हील हो रहे हैं। उन दोनों चीजों को जब हम एक साथ मिलकर आ जाते हैं तो ये काफी पावरफुल टेक्निक बन जाती है हीलिंग की। All this could be termed blind faith as there was no understanding in those days as to how the cures were brought about. तो उन दिनों में इसके लिए कोई अंडरस्टैंडिंग थी नहीं कि कैसे क्योर्स हुए, इसीलिए हम इनको ब्लाइंड फेथ बोल सकते हैं। सब्जेक्टिव फेथ एंड व्हाट इट मीन, यू विल रिकॉल द प्रिपोजिशन। अच्छा, इस वीडियो में हम सीखेंगे सब्जेक्टिव फेथ के बारे में। और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है। सब्जेक्टिव क्या होता है, जो हम व्यक्तिगत जो चीजें होती है, जो एक पर्सनल चीज होती है, और ऑब्जेक्टिव होती है जो कोई ऑब्जेक्ट से बाहरी कोई चीज से रिलेटेड होती है। सब्जेक्टिव मतलब जैसे हमारी पर्सनल चॉइस है, कुछ फेथ है, तो वो एक एक पर्सन का सब्जेक्टिव, उसकी प्रेफरेंस अलग अलग होती है, और ऑब्जेक्टिव हम फैक्ट्स या लॉजिक की तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव फेथ की बात हो रही है, मतलब खुद से क्या फेथ रखते हैं एंड व्हाट इट मीन्स। You will recall the proposition, which need not be repeated at length, that the subjective or subconscious mind of an individual is as amenable to control as his own conscious or objective mind as it is by the suggestions of another. यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जो सब्जेक्टिव माइंड है, जो हमारा सब्जेक्टिव यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, और ऑब्जेक्टिव मतलब कि कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड ऑब्जेक्टिव इसको कहा जा रहा है, मतलब कि वो जो बाहर के सिचुएशंस, इनसे ही रिलेटेड हम थॉट्स ना क्रिएट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव माइंड, कॉन्शियस माइंड। और सब्जेक्टिव जो हम पर्सनली बिलीव करना चाहते हैं, वो हमारे सब्जेक्टिव माइंड में रहता है। इट फॉलोज दैट whether whatever may be your objective belief, if you can assume to have faith actively or passively, your subconscious mind will be controlled by the suggestion and your desire will be fulfilled। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बिलीफ हमारे पास भले कुछ भी है, अगर हम अश्यूम करेंगे, फेथ रखेंगे, विश्वास रखेंगे एक्टिवली और पैसिवली, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या होगा,
उस सजेशन से कंट्रोल्ड होगा। यानी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो सजेशन गया, वो थॉट गई, कोई एक अच्छी थॉट हमने क्रिएट की हीलिंग की, वो थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गई। तो अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल्ड बाय दैट सजेशन, तो उस हीलिंग वाली थॉट से कंट्रोल्ड होगा, और जो हमारी डिजायर होगी हीलिंग करने की वो फुलफिल हो जाएगी। The faith required in mental illness is a purely subjective faith, and it is attainable upon the cessation of active acquisition on the part of the objective or conscious mind. जो मेंटल हीलिंग्स जो होती है उसमें फेथ रिक्वायर्ड होता है, और ये प्योरली सब्जेक्टिव फेथ है। मतलब अगर हमने किसी को कह दिया कि आप विश्वास करो विश्वास करो, हमने 5 लोगों से कहा, तो जरूरी नहीं है सबका विश्वास सेम डिग्री का ही होगा, वो सबका अपना अपना सब्जेक्टिव विश्वास है। कुछ लोग बहुत ज्यादा विश्वास करेंगे, कुछ कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो फेथ होता है ना वो बहुत जरूरी होता है मेंटल हेल्थ में। और ये तभी अटेन कर सकते हैं हम लोग जब हम upon the cessation of active opposition on the part of objective और conscious mind, जब हमारा ऑब्जेक्टिव और कॉन्शियस माइंड उस टाइम एक्टिव ना हो, उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो, और वो फेट बहुत जरूरी है, तब जाकर के मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। इन द यूनिट ऑफ द बॉडी इट इज ऑफ कोर्स डिजायरेबल टू secure the concurrent faith of both the conscious and subconscious mind. Essentially, if you will enter into a state of passivity or receptivity by relaxing the mind and the body and getting into a sleepy state. In the drowsy state, your passivity becomes receptive to subjective impressions. तो जो बॉडी की हीलिंग होती है उसमें डिजायरेबल होता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव और सबकॉन्शियस सब्जेक्टिव यानी कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्करेंट फेस रखें, दोनों में हम फेथ रखें। लेकिन ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि जब हम सोने वाले रहते हैं हमारे ड्राउजी स्टेट में चले जाते हैं, उस वक्त कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव रहता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। Recently, I was asked by a man, how is it that I got a healing through a master? I did not believe what he said when he told me that there is no such thing as disease and that matter does not exist. This man at first thought his intelligence was being insulted, and he protested against such a palpable absurdity. The explanation is simple. He was quieted by soothing words and told to get into a perfectly passive condition, to say nothing and think of nothing for the time being. His minister also became passive and affirmed quietly, peacefully, and constantly for about 1/2 hour that this man would have perfect health, peace, harmony, and wholeness. He felt immense relief and was restored to health. यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि उनको एक आदमी ने पूछा था कि कैसे वो हीलिंग वाले स्टेट में पहुंच गए एक मिनिस्टर के थ्रू। उस मिनिस्टर ने उनसे उनके दिमाग में सजेशन डाला था कि वो एकदम मतलब कि उनकी हेल्थ पूरी परफेक्ट है, पीस है, हार्मनी है, होलनेस है, और ये उन्होंने आधे घंटे तक रिपीट किया था। तो ये जो मैन है जो कि सिख थे, इनको काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है, और ये सच में इनकी हेल्थ रिस्टोर हो जाती है। इट इज easy to see that his subjective faith had been made manifest by his passivity under treatment, and the suggestions of perfect helpfulness by the minister were conveyed to his subconscious mind. The two subjective minds were then en rapport. It is because
यहाँ पे बहुत इजी है कि ये जो सब्जेक्टिव फेथ था हैज बीन मेड मैनिफेस्ट बाय हिज पैसिविटी अंडर ट्रीटमेंट। वो जो मैन था वो अंडर ट्रीटमेंट था, लेकिन उसका जो सब्जेक्टिव फेथ था उसकी वजह से और ज्यादा जल्दी उसने हेल्थ अपनी रिस्टोर करी थी। और इस टाइम जो उसके दोनों सब्जेक्टिव माइंड्स थे वे देन इन रिपोर्ट मतलब क्या है कि वो दोनों कोऑर्डिनेशन में थे। द मिनिस्टर वाज नॉट handicapped by antagonist auto suggestions of the patient arising from objective doubt of the power of the healer or the correctness of the theory। तो ये जो मिनिस्टर था, in this sleepy, drowsy state, the conscious mind resistance is reduced to a minimum and results followed. The subconscious mind of the patient, being necessarily controlled by such suggestion, exercised its functions in accordance therewith, and a healing followed। तो यहाँ पे उस मिनिस्टर ने सजेशन दी थी, तो उसका जो कॉन्शियस माइंड था मैन का, जिसकी हीलिंग हुई थी, वो ड्राउजी स्टेट में था। और वो कॉन्शियस माइंड एकदम रिड्यूस हो गया था अपने मिनिमम में, और फिर रिजल्ट्स फॉलो हुए, मतलब कि उसकी हीलिंग हुई। जैसे कि कॉन्शियस माइंड तो वो ही सब देखता है ना, जो ऑब्जेक्टिव चीजें होती है, सर्कमस्टांस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग थॉट्स क्रिएट होते हैं। मतलब अगर कोई बीमार है तो फिर वो उसको अपनी कंडीशन ही दिखेगी कि इतना ज्यादा बीमार है वो, फिर उसकी हीलिंग अगर स्लो हो रही है फिर उसे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि मेरी हीलिंग हो भी रही है कि नहीं, मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा या नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब वो मिनिस्टर उसे परफेक्ट हेल्थ के सजेशंस देता है, थॉट्स देता है, तो उस वक्त क्या होता है, जो उसके जो कॉन्शियस माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं वो काफी मिनिमम हो जाते हैं, और सब कॉन्शियस माइंड में उस मिनिस्टर के जो सजेशन है परफेक्ट हेल्थ वाले वो जाते हैं, और फिर रिजल्ट्स फॉलो होते हैं, उनके मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। उसने अपनी पूरी हेल्थ रिस्टोर कर ली। द मीनिंग ऑफ एब्सेंट ट्रीटमेंट। Suppose you learned that your mother was sick in New York City and you lived in Los Angeles. Your mother would not be physically present where you are, but you could pray for her. It is the Father within which doeth the work। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए कि आपकी मदर सिक है न्यूयॉर्क सिटी में और आप लॉस एंजलिस में रहते हो। तो आप फिजिकली अपने मदर के पास प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन आप प्रे करोगे उनके लिए। तो यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन लिखी है कि इट इज द फादर विद इन विच डुएट्स डिवोर्स। मतलब हमारे अंदर जो फादर है, जैसे कि अ, यहाँ पे तो फादर जीसस क्राइस्ट को मतलब कि गॉड को बोला जा रहा है ना, जैसे क्रिश्चियन फेथ है तो वो वाला है। तो अगर जो हमारे अंदर में जो गॉड प्रेजेंट होते हैं वही है जो कि ये वर्क करते हैं। जो हमारे अंदर की जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर की जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, जो हमारे अंदर में हम मानते हैं ना कि एक जो सुप्रीम एनर्जी है वही है जो सबको जोड़ के रखती है और वही सारे काम करती है और सबसे सारे काम कराती है। द क्रिएटिव लॉ ऑफ माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सर्व्स यू एंड विल डू द वर्क। हमारे माइंड का जो क्रिएटिव हिस्सा होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो हमें सर्व करते हैं और सारे काम करते हैं। इट्स रिस्पॉन्स टू यू इज ऑटोमेटिक, ये हमसे ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड भी करता है। योर ट्रीटमेंट इज फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग एन इनर रियलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड हार्मनी इन योर मेंटालिटी। तो हमारी ट्रीटमेंट क्या है कि हमें इनर रियलाइजेशन करनी है ऑफ हेल्थ एंड हार्मनी, हमारी मेंटालिटी की। हमारा जो मेंटल स्टेट है वो काफी हेल्दी होना चाहिए, इन हार्मनी काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी हैबिचुअल थिंकिंग अगर अच्छी हो जाएगी तो फिर हमारी लाइफ में सारी चीजें ठीक होने लगेंगी।
This inner realization acting through the subconscious mind operates through your mother's subconscious mind as there is but one creative mind. तो जो हमारे अंदर की इनर रियलाइजेशन होती है, जो हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू एक्ट करती है, वो ऑपरेट कैसे होती है? जो हमारी मदर के सबकॉन्शियस माइंड होती है ना, उसके थ्रू ऑपरेट करते हैं, ताकि ये एक ही क्रिएटिव माइंड है। Your thoughts of health, vitality, and perfection operate through the one universal subjective mind and set a law in motion on the subjective side of life, which manifests through her body as a feeling. तो यहाँ पे जैसे दिया गया था एग्जाम्पल कि जो मदर अगर सिक होंगी तो उनके लिए हम प्रे करेंगे, तो ये बताना चाह रहे हैं कि एक ही क्रिएटिव माइंड है, तो हम वो जो प्रे भी करेंगे तो वो एक ही तरह से ऑपरेट होगा। इन द माइंड प्रिंसिपल देयर इज नो टाइम और स्पेस, इट इज द सेम माइंड दैट ऑपरेट्स थ्रू योर मदर नो मैटर वेयर शी मे बी। इन रियलिटी देयर इज नो एब्सेंट ट्रीटमेंट एज अपोज टू प्रेजेंट ट्रीटमेंट, फॉर द यूनिवर्सल माइंड इज omni present. You do not try to send out thoughts or hold a thought. Your treatment is a conscious movement of thought, and as you become conscious of the qualities of health, well being, and relaxation, these qualities will be resurrected in the experience of your mother, and results will follow. तो जो हमारे माइंड का जो प्रिंसिपल होता है ना, उसमें कोई टाइम या स्पेस नहीं होता, क्योंकि जो यूनिवर्सल माइंड है वो omni प्रेजेंट है। omni प्रेजेंट मतलब सब जगह वो प्रेजेंट है। तो जब भी हम ट्राई करते हैं सेंड आउट करने की, कुछ थॉट्स भेजने की, कोई थॉट हम होल्ड करते हैं, तो वो दूसरों तक भी पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो माइंड है वो एक ही क्रिएटिव माइंड है। तो अगर कोई बीमार है, हम उनको हेल्थ, वेलबींग, रिलैक्सेशन के थॉट्स भेजेंगे, तो वो उन तक पहुंचेंगे और फिर रिजल्ट्स होंगे, यानी फिर इनकी हीलिंग होगी। The following is a perfect example of what is called absent treatment. Recently, a listener of our radio program in Los Angeles prayed as follows for her mother in New York who had a coronary thrombosis. The healing presence is right where my mother is. The healing presence is right where my mother is. Her bodily condition is but a reflection of her thought life, like shadows cast on the screen. I know that in order to change the image on the screen, I must change the projection reel. My mind is the projection reel, and I now project in my own mind the image of wholeness, harmony, and perfect health for my mother. The infinite healing presence, which created my mother's body and all her organs, is now saturating every atom of her being, and a river of peace flows through every cell of her body. The doctors are divinely guided and directed, and whoever touches my mother is guided to do the right. I know that disease has no ultimate reality. If it had, no one could be healed. I now align myself with the infinite principle of love and life, and I know and decree that harmony, health, and peace are now being expressed in my mother's body. Wow. तो कितना सुंदर इन्होंने प्रे किया है कि जो हीलिंग प्रेजेंस है वो वहीं पर है जहाँ मेरी मदर है। उनकी बॉडी की कंडीशंस, थॉट्स लाइक शैडोज कास्ट जैसे होती है, एक स्क्रीन पे जैसे थॉट्स हमारे चल रहे हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वैसे ही इनके मदर की बॉडी की कंडीशन है। तो इन्होंने प्लेस किया कि जैसे वो जो इमेजेस स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं उनकी मदर की बॉडी के कंडीशंस, तो अपने थॉट्स के थ्रू ये शेप कर रहे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एक ही है। तो फिर ये इमेजिन करती हैं कि होलनेस है, हार्मनी है, परफेक्ट हेल्थ है उनके मदर के लिए। उनकी मदर की इन जो इनफाइनाइट हीलिंग प्रेजेंस है वो उनकी मदर की बॉडी में प्रेजेंस है, क्योंकि उसी ने उस बॉडी को बनाया, उसके सारे ऑर्गन्स को बनाया, और अब सारे सेल जितने हैं उनके बॉडी के, वो सेल के थ्रू पीस फ्लो हो रहा है। जो डॉक्टर्स उनसे
ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो डिवाइनली गाइडेड है, डायरेक्टेड है, जो भी उन्हें टच करते हैं वो सही चीज ही करता है, एकदम राइट थिंग की ट्रीटमेंट में करता है। डिजीज की कोई अल्टीमेट रियलिटी नहीं होता, क्योंकि अगर डिजीज की कोई भी अल्टीमेट रियलिटी होती तो कभी कोई ठीक ही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वो फिर अलाइन करती है अपने आप को उस इनफाइनाइट प्रिंसिपल ऑफ लव एंड लाइफ से। और वो जानते हैं कि हार्मनी, हेल्थ, पीस, ये सब वो उनकी मदर के बॉडी में रिस्टोर होंगे। तो ये काफी सुंदर से इन सबके अपने अपने पेयर उस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कभी भी। She prayed in the above manner several times daily, and her mother had a most remarkable recovery after a few days, much to the amazement of her specialist. He complimented her on her great faith in the power of God. तो जो रहते हैं ना, उन्होंने अपने मदर के लिए इस तरह से प्रे किया। अब एक दिन में कई बार उन्होंने प्रे किया और फिर उनकी मदर की बहुत remarkable recovery हो जाती है फिर से। और जो काफी अमेज्ड हो गए थे और ये कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने इनका जो पावर है गॉड के ऊपर इस ग्रेट फेथ के लिए वो कॉम्प्लीमेंट भी करते। The conclusion is that in the daughter's mindset, the creative law of mind in motion on the subjective side of life, which manifested itself through her mother's body as perfect health and harmony. What the daughter felt as true about her mother was simultaneously resurrected in the experience of her mother. यहाँ पे कंक्लूजन क्या मिलता है हमें कि जो डॉटर का जो माइंड है उसने क्रिएटिव लॉ ऑफ माइंड से उस सब्जेक्टिव साइड ऑफ लाइफ को मैनिफेस्ट किया, अपने मदर की बॉडी की परफेक्ट हेल्थ और हार्मनी के उससे मैनिफेस्ट किया। और ये जो डॉक्टर रहती हैं, इन्होंने जो फील किया कि ट्रू है, ये सच है, और वो सच में उनकी मदर की बॉडी में, उनके एक्सपीरियंस में वो चीज सच होता है। तो हमें फेथ रखना है, इस चैप्टर से हमें यही पता चल रहा है। इस चैप्टर का, इस पूरी बुक से ही हमें ये पता चलता है कि हमें फेथ रखना है। जो गॉड की पावर है, जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, वो सबको गाइड कर रही है। इन सब चीजों पे हमें विश्वास रखना है और अपना माइंड सेट अच्छा रखना है, अपना ध्यान रखना है, और फिर सब कुछ पॉसिबल है हमारी लाइफ में। So next year we will start from releasing the kind into function of the subconscious mind. Thank you so much for joining today. Thank you so much.